Hi friends, welcome to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine today. So आज मैं आ गई हूँ बागा जतीन रेलवे स्टेशन के जस्ट पास के एक लोकेशन में जहाँ पे मैं कवर करूँगी G+2 बिल्डिंग को। और आज हमें हेल्प करेंगे फिर से सौरभ दा। वेलकम टू माय चैनल सौरभ दा। ओके, सो सौरभ दा से ही हम लोकेशन के बारे में, बिल्डिंग के बारे में और सारी डिटेल्स हम सौरभ भैया से ही ले लेते हैं। सो सौरभ भैया, सबसे पहले मुझे बता दीजिए कि लोकेशन क्या है। এই জায়গাটার নাম হচ্ছে বাঘাযতীন প্লেস। এটা বাঘাযতীন রেলওয়ে স্টেশন থেকে 3-4 মিনিটের ওয়াকিং ডিস্টেন্স, আর রাজা ইসমলি রোড বাঘাযতীন মোড় থেকে 6-7 মিনিটের ওয়াকিং ডিস্টেন্স। আর এটা দেখতেই পাচ্ছ পুকুরের অপোজিটেই হচ্ছে মেন রোড। ওই মেন রোড থেকে অটো সার্ভিস আছে যেটা বাঘাযতীন মোড় যাচ্ছে, আর হাইল্যান্ড পার্ক বিগ বাজার যাচ্ছে। तो हाईलैंड पार्क कितना दूर है यहाँ से? হাইল্যান্ড পার্ক এখান থেকে 300 মিটার দূরে। Only অটোতে 300 3 মিনিট লাগে, 2-3 মিনিট 4 মিনিট লাগে। अच्छा, রেল গেটটা পার হলেই হাইল্যান্ড পার্ক বিগ বাজার। ओके सौरभ भैया, अब मुझे ये बता दीजिए कि यहाँ से मेट्रो स्टेशन और बस स्टैंड की कितनी दूरी होगी? আচ্ছা, এখান থেকে দুটো বাস স্ট্যান্ড যাওয়া যেতে পারে। একটা হচ্ছে বাঘাযতীন বাইপাস, যেটা এখান থেকে 300 মিটার দূরে, অটো আছে বা হেঁটে যাওয়া যাবে বা রিক্সা আছে। আর রাজা এসি মল্লিক রোড, যেটা বাঘাযতীন মোড় আছে, যেটা দিয়ে যাদবপুর, কোলপাড়, গড়িয়াহাট এইসব যাওয়া যায়, সেটাও এখান থেকে পায়ে হেঁটে 6-7 মিনিটের walking distance। अच्छा, सब कुछ नियर बाय Very है। near। मुश्किल से मुश्किल 4-5 मिनट, 6 मिनट। 5-6 মিনিটের ওয়াকিং ডিস্টেন্সের মধ্যে বাইপাস, 5-6 মিনিটের মধ্যে বাঘাযতীন মোড়, 5-6 মিনিটের মধ্যে বাঘাযতীন রেল স্টেশন, 8-10 মিনিটের মধ্যে দুটো মেট্রো স্টেশন, ক্ষুদিরাম, কবি সুভাষ, দুটোই আপনারা। अच्छा, और यहाँ पे हॉस्पिटल आसपास? হসপিটাল পাড়াই বলা যেতে পারে এখানে, কারণ এখান থেকে পিয়ারলেস হসপিটাল ওয়াকিং ডিস্টেন্স। পিয়ারলেস হসপিটালে ওখানে গেলেই মুকুন্দপুরে ওখানে দেবী শেট্টি হসপিটাল, RN ট্যাগর সব পাওয়া যায়, সব হসপিটাল, MRI হসপিটাল, পিয়ারলেস সব ওইখানে। अच्छा, और स्कूल कॉलेजेस वगैरह? স্কুল আমাদের বাড়ির অপোজিটে একটা স্কুল আছে, প্রান্তপল্লী হাই স্কুল, বাঘাযতীন বয়েজ স্কুল, যাদবপুর বিদ্যাপীঠ, যাদবপুর হাই স্কুল, আর এছাড়া ইংলিশ মিডিয়াম কার্মেল স্কুল আছে, পাটুলিতে গোল্ডস্মিথ স্কুল আছে। পাটুলি কিন্তু এখান থেকে একদমই সামনে। ओके, सो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल सब जस्ट नियर बाई में है, 2-3-4 मिनट की दूरी पे। सो ये बहुत प्राइम लोकेशन है। सो इस बिल्डिंग का जो है ना, बहुत एक है ना अच्छा व्यू है, जो मैं ये इस पूरे डिटेल और ये सारी डिटेल्स लेने के बाद मैं आप लोग को दिखा दूंगी। अच्छा, सो सौरभ भैया मुझे बता दीजिए, बैंक वगैरह, ATM वगैरह? এখানে ব্যাংক আপনার IDBI ব্যাংক আছে, ব্যাংক অফ বরোদা আছে, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া আছে, PNB আছে, সব এটা স্টেশন রোড তো আছে, তাই জন্য এখানে পরপর ব্যাংক ফেসিলিটিগুলো পাওয়া যাবে। কমার্শিয়াল জায়গা তো। আর এখানে বাজার বলতে কি, বেরোলেই ডানাতে যে বাজারটা বসে সেটাকে তালপুকুর বাজার বলে। সেটা সকালে বিকেলে দুবারেই ওই বাজারটা বসে। मतलब लोकल मार्केट पास में? একদম বেরোলেই রাইট হ্যান্ড সাইডে। अच्छा, और जैसा कि मैं देख रही हूँ बिल्डिंग अभी मतलब अंदर पूरा पुट्टी वुट्टी हो चुका है, बाहर सिर्फ कलर बाकी। পেইন্টটা বাকি, 8-10 দিনের মধ্যে পেইন্টটা কমপ্লিট হয়ে अच्छा, যাবে। सो ये मतलब रेडी टू मूव इन Ready है? to move, एकदम। अच्छा, तो 10 दिन में पूरा सब कुछ डन हो पेंट तो जाएगा। कम्प्लीट और पार्किंग वगैरह है? পার্কিং বলতে কি, এটা ডেড এন্ড রাস্তা আছে, এখানে ছোট গাড়ি আরামসে বাইরে পার্কিং করা যাবে, আর বাইক ভেতরে রাখার জায়গা করা अच्छा, আছে। तो बाइक के लिए अंदर जगह है, लेकिन पार्किंग बाहर रखना हाँ, पड़ेगा। four सो wheeler पार्किंग की तो नहीं है, बट 2 व्हीलर आप अंदर ही रख सकते हैं बिल्डिंग के, सो उसका कोई इशू नहीं है। सो सौरभ भैया, मेंटेनेंस चार्ज कितना होगा? 200 টাকা পার মান্থ হচ্ছে মেনটেনেন্স। প্রত্যেকটা ফ্লোরে একটা করে ফ্ল্যাট আছে। এখানে সিকিউরিটি গার্ডের কোনো ব্যাপার নেই, শুধু হচ্ছে কমন স্পেসের আলো আর জলের পাম্প। अच्छा, 200 টাকা করে অনেক। सो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड किसके अंडर में आता है? CSC আছে, এটা CSC এরিয়া আছে, আর এটা 102 নম্বর ওয়ার্ড, এটা বাঘাযতীন যাদবপুর থানার আন্ডারে। अच्छा, पानी की क्या व्यवस्था পানি है? এখানে গার্ডেন রিচের জল, 24 আওয়ার রিজার্ভার আছে, উপরে জলের ট্যাঙ্ক আছে। अच्छा, তো এটা কর্পোরেশন का? গার্ডেন রিচ না, বোরওয়েল না, এটা কর্পোরেশনের রিজার্ভার জল আসে। अच्छा, कॉर्पोरेशन के थ्रू पानी आता 24 है। আওয়ার ওয়াটার সার্ভিস, अच्छा, নো পাওয়ার কাটিং। अच्छा, कोई पावर कटने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे बारिश के टाइम में पानी वानी না, चलता এগুলো है? সব আন্ডারগ্রাউন্ড ড্রেনেজের লাইন আছে, দেখতে পাচ্ছ এখানে সব ড্রেনেজের সব ইয়ে করা আছে, তো এখানে জল জমার কোনো ব্যাপার নেই। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, कौन से ब्रांड के? এইগুলো সব হাই কোয়ালিটিরই কনস্ট্রাকশন করা হয়েছে। তো এখানে আল্ট্রাটেক দিয়ে ঢালাই, ক্যাপিটাল রড এগুলোই ইউজ করা হয়েছে, যেরকম হয় মানে। আর ভেতরে জনসনের টালি বসানো আছে, ভেক্টিফাইড টার, আর রেভেলসের তার,
প্রত্যেকটা ঘরে এসি পয়েন্ট এগুলো সবই করা। कॉमन एरिया में क्या यूज किया गया है, टाइल्स या না मार्बल? মার্বেল, কমন এরিয়াতে মার্বেল ইউজ হয়েছে। अच्छा, सो इस बिल्डिंग में कितने फ्लैट और किस किस फेसिंग में है? এইখানে প্রত্যেকটা ফ্লোরে একটা করে ফ্ল্যাট, সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট 3 দিকে খোলা, প্রত্যেকটা ফ্লোরে একটা করেই ফ্ল্যাট হয়েছে। अच्छा, सो बिल्डिंग का जो फेस है वो साउथ साउथ फेसिंग फेसिंग है। है। अच्छा, सो यहाँ पे पीने के पानी की क्या व्यवस्था পিনে है? এটা হচ্ছে আপনার গার্ডেন রিচের মিষ্টি জল, এখানে ওইটাই খাওয়ার জল, সেখানে ইয়ে বসাতে দরকার अच्छा, सो নেই। आयरन वाला पानी नहीं না आता, না, এটা मीठा पानी মিষ্টি জল आता है। এবং এটাই খাওয়ার জল হিসাবেই ব্যবহার হয়। अच्छा, सो मतलब आपके অ্যাকোয়াগার্ড না বসালেও চলবে। वाओ, सो मतलब आपके बाल झड़ने का प्रॉब्लम नहीं होगा, हाँ, जो कलकत्ता में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि पानी में इतना ज़्यादा आयरन होता है कि बाल झड़ता है। सो बेसिकली आपको यहाँ पे मीठा पानी मिलेगा तो बाल झड़ने का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, और आयरन तो है ही नहीं। ओके, सो सौरभ भैया मुझे ये बता दीजिए कि अगर किसी को लोन वोन लेना है तो कैसी क्या व्यवस्था? এটা প্রাইভেট ব্যাংক, যে কোনো প্রাইভেট ব্যাংক থেকে লোন হবে, আর এটা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা পাবে। আর প্রাইসগুলো হচ্ছে ফিক্স রাখা হয়েছে 20 লাখ গ্রাউন্ড ফ্লোরে, আর ফার্স্ট ফ্লোর সেকেন্ড ফ্লোরে 21 লাখ টাকা করে। এখানে কোনো ব্রোকারেজ নেই, কোনো জিএসটি নেই, এখানে কোনো মিটারেরও খরচা লাগছে না, কারণ এটা সিএসসি এরিয়া, স্টেট বোটেন লাগে যেটা, তো এই রাখা হয়েছে। वाओ, सो मैं सौरभ भैया के पास जब भी आती हूँ ना, मुझे एक चीज़ बेनिफिट बहुत मिलता है कि कोई एमिनिटीज़ चार्जेस नहीं, कोई जीएसटी नहीं, एक बंडल पैकेज देते हैं। सो बेसिकली जो ग्राउंड फ्लोर है उसका 20 लाख प्राइस है, और जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर है उसका 21 लाख है। सो ऑब्वियसली थोड़ा हाइट होगा तो फ्लैट का व्यू अच्छा होगा, सो इसीलिए थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है। और जैसा कि बताया कि आप लोग, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को ये पूछ रहे थे कि 20 लाख के अंदर कोई 2 BHK विथ बैल्कनी, सो एग्जैक्टली ये वैसा ही है। और ऊपर से बैल्कनी के सामने ही, जैसे मैंने बताया कि आपको एक छोटा सा पॉन्ड व्यू मिल जाएगा, नॉट एग्जैक्टली छोटा, इट्स क्वाइट बिग इनफ, तो आपको एक पॉन्ड व्यू भी मिल जाएगा। सो जो लोग ढूंढ रहे थे इस आसपास के लोकेशन में, सो ये एक बहुत प्राइम लोकेशन है, बाघा जतिन लोकेशन है, और एकदम जैसे स्टेशन वगैरह सब पास है, तो आप लोग के रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है ये प्रोजेक्ट। सो अगर आप लोग को साइट विजिट करना है, सो मैं सौरभ भैया का नाम और नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो आप वहाँ से पुल आउट करके साइट विजिट कर सकते हैं। और सौरभ भैया, अगर जैसे कोई मेरा चैनल देख के आता है, कुछ बार्गेन वगैरह हो जाएगा? আসুন দেখে আমরা চেষ্টা করবো। ओके, सो अगर आप लोग मेरा चैनल देख के आते हैं तो ज़रूर मेंशन कीजिए, अगर हो पाएगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे। सौरभ भैया कभी डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। ओके, सो सौरभ भैया मुझे ये बता दीजिए, जो तीनों फ्लैट है इसका बिल्डअप एरिया सेम है? सेम साइज 667 और सुपर layout? बिल्डअप एरिया, सेम फ्लोर एलिवेशन वो सेम। अच्छा, सो सुपर बिल्ड एरिया, लेआउट वगैरह सब सेम है, ठीक है। सो हमने बेसिक डिटेल्स यहाँ पे ले ली है, कुछ अगर मिस आउट होता है तो मैं अंदर कवर कर लूँगी। सो अभी चलते हैं, बिल्डिंग दिखा देती हूँ, लोकेलिटी दिखा देती हूँ, एक बहुत खूबसूरत सा व्यू है वो भी दिखा देती हूँ, और सारी चीज़ की लेआउट कैसा है सब अंदर जाके बात करते हैं। ओके, सो फ्रेंड, जो मैं आज बिल्डिंग कवर करने के लिए आई हूँ वो ये है, इट्स ऑलमोस्ट डन। ओके, सो ये G+2 बिल्डिंग है, ठीक है। ये ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर एंड देन सेकंड फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में 21 लाख प्राइस रखा गया है, और नीचे का आपको 20 लाख देना पड़ेगा। और जस्ट इसके ऑपोजिट में जो मैं बात कर रही थी वो है ये ह्यूज सा पॉन्ड व्यू। सो ये एकदम ओपन एरिया है। सो ओपन एरिया होने के कारण है ना, आपको पूरी ये साउथ फेस है, मतलब ये वाला जो डायरेक्शन है वो साउथ है। सो बहुत अच्छी हवा आ रही है, एक अच्छा सा व्यू दिया गया है। और जैसा कि आप वो वहाँ पे देख रहे हैं, उसके सामने ही आपको ये मेन रोड दिख जाएगा, ठीक है। सो जो ये पॉन्ड ख़त्म हो रहा है, पॉन्ड के डेड एंड पे ही आपको वो जो रिक्शा गया वहाँ से, वो आपका मेन रोड है, मतलब बिल्डिंग के जस्ट ऑपोजिट में ही आपको मेन रोड मिल जाएगा। सो बेसिकली ये लोकेशन है, सो आप देख लीजिए, ठीक है। सो ये बड़ा सा एक पॉन्ड है, ये लोकेशन है, और इसके ऑपोजिट में ही ये एक बिल्डिंग है। सो हरी अप, आप लोग जैसा डिमांड कर रहे थे ये वैसा ही आपके एक्सपेक्टेशन को मीट अप कर रहा है। सो साइट विज़िट के लिए जल्दी कीजिए, 3 ही फ्लैट है, ठीक है। सो ये सोल्ड आउट हो जाए उससे पहले ही आप लोग इसे ग्रैब कर लीजिए। सो चलिए अब अंदर चलते हैं और रूम्स के लेआउट
चेकआउट करते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, मैं आपको अभी एक 2 BHK का लेआउट दिखा देती हूँ। ये ग्राउंड फ्लोर वाला 2 BHK है, ठीक है, जिसका प्राइस 20 लाख रखा गया है। सो इसमें कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स है। सो मैं आपको इंडिविजुअली दोनों के लेआउट दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले ये है आपका ग्राउंड फ्लोर का 2 BHK। ओके, सामने में स्टेयर्स का जो पोर्शन है वहाँ पे पूरा मार्बल का काम किया गया है, ठीक है। और जैसा कि फ्लैट के अंदर घुसते ही आप देख रहे हैं कि टाइल्स का काम किया गया है। सौरभ भैया ने पहले से मेंशन कर दिया है कि जॉनसन के टाइल्स यूज़ किए गए। तो सबसे पहले ही आप जब घुसेंगे आपको ये हॉल कम किचन दिखेगा। सो सबसे पहले मैं आपको सारे डायरेक्शन बता दूं। सो सामने में नॉर्थ साइड है, जहां मैं खड़ी हूं वो साउथ है। सो दरवाजे में खड़े होकर ही मैं आपको एक लेआउट बता देती हूँ कि कौन सा किस डायरेक्शन में है, ठीक है। सो सबसे पहले में ये आपको फर्स्ट बेडरूम मिल जाएगा। फिर उसके बाद हॉलवे से निकल के ही आपको ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। एंड देन उसके राइट में ही आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है और ये है आपका एंट्रेंस। ओके, सो चलिए मैं अब आपको इस पूरे फ्लैट का एग्जैक्ट रूम साइज और फ्लोर साइज बता देती हूँ। सो ये हॉल कम किचन का जो स्पेस है वो 14/8 का ये आपको ह्यूज सा हॉल कम डाइनिंग का स्पेस दिया गया है, ठीक है। ओपन एक किचन दिया गया है, 2 बड़े बड़े विंडोज़ दिए गए हैं, एक किचन के फ्रंट में है और एक हॉल रूम से अटैच है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं किचन में आपको वाइट ग्रेनाइट का स्लैब दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक आपको पॉइंट दिया हुआ है रेफ्रिजरेटर वगैरह के लिए। इस साइड में माइक्रोवेव का पॉइंट्स वगैरह दिया गया है। उस तरफ में आपको अगर एक आपका आरओ का पॉइंट है वो दिया हुआ है। ऊपर में एक चिमनी का पॉइंट दिया है। यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का सिंक बैठेगा तो इस सिंक के लिए पॉइंट दिया गया है। सो बेसिकली ये जो आपका किचन है वो इसकी चौड़ाई जो है वो 8 फीट लंबाई में है, ठीक है। और चूँकि ये ओपन किचन है तो आप अपने हिसाब से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं या यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो हॉल से ही अटैच आपको सबसे पहले एक ये फर्स्ट बेडरूम मिल जाएगा। सो ये फर्स्ट बेडरूम का जो साइज़ है वो 9x9 है, ठीक है। सो अभी भी कुछ काम बाकी है, सो इसीलिए थोड़ा सा कमरा गंदा है। सो इसमें घुसते ही साथ में जो सबसे पहले आपको दिखेगा वो है 2 बड़े बड़े ह्यूज से स्लाइडिंग डोर वाले विंडो। ओके, सो यहाँ पे एक विंडो है और ये जो कमरा है ये आपका नॉर्थ साइड है। सो ये आपका 9x9 का आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया हुआ है। दरवाजे के पास में ही आपको स्विचेस वगैरह दिए हुए हैं। सो जैसे ही आप अपने फर्स्ट बेडरूम से निकलते हैं वापस अपने हॉल कम डाइनिंग स्पेस में आ जाते हैं। फिर ये हॉलवे से अटैच ही आपको एक ये कॉमन बाथरूम का स्पेस दिया गया है। यहाँ पे एक बेसिन लगेगा, सो इसीलिए यहाँ पे एक स्पेस बनाया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका एक बेसिन लग जाएगा, ऊपर में एक स्विचेस वगैरह लग जाएंगे। सो बेसिकली ये जो आपको बाथरूम दिया गया है इसमें बहुत सारा सामान है। सो आप लोग को साइज़ तो नहीं पता चलेगा लेकिन मैं आपको साइज़ बता देती हूँ। सो ये आपको एक ह्यूज सा कॉमन बाथरूम दिया गया है जिसका साइज़ 4x7 है। तो वहाँ पे आपको एक गीज़र का पॉइंट दिया हुआ है, एक मीडियम साइज़ की विंडो दी हुई है, ऊपर आपको एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस दिया गया है। सेंटर में आपको शावर पॉइंट के लिए जगह दी हुई है, बीच में आपको टैप पॉइंट्स वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। और एकदम डेड एंड पे कॉर्नर पे ही आपको एक वेस्टर्न टॉयलेट लगेगा यहाँ पे। सो भी सामान रखा हुआ है तो नहीं लगा है। सो बेसिकली इसका जो साइज़ है ये 4x7 का आपको एक सिंगल कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर वाला जो 2 BHK इसमें एक ही ड्रॉबैक है कि आपको सिर्फ एक टॉयलेट मिलेगा। और इसमें मैंने बताया था कि कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है, सो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सो बाथरूम से निकलते ही आपको ये सेकेंड मास्टर बेडरूम मिल जाएगा। सो जैसे ही आप ये मास्टर बेडरूम में घुसेंगे तो सबसे पहले मैं इसका साइज़ बता दूँ। ये 9.5 x 10.5 का ये आपको मास्टर बेडरूम दिया गया है। इसके जस्ट आपके डोर के जस्ट ऑपोजिट में ही ये आपको ओपन बैल्कनी दी गई है विद पॉन्ड व्यू ऑन इट। ओके, और दरवाजे के जस्ट ऊपर ही आप देख रहे हैं कि एक लॉफ्ट का ह्यूज लॉफ्ट का एरिया दिया गया है। सो अगर आपका कोई एक्स्ट्रा सामान है आप वहाँ पे रख सकते हैं। और 2 बड़े बड़े विंडोज़ दिए गए हैं, ठीक है। और एकदम लेफ्ट साइड में आपको AC का पॉइंट दिया गया है। दरवाजे के जस्ट बाजू में मेन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं, ठीक है। सो ये मास्टर बेडरूम है जिसका साइज 9.5 x 10.5 है। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको बैल्कनी से सामने पॉन्ड व्यू मिल जाएगा,
ठीक है। सो ये आपका पॉन्ड व्यू है जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है, और इसी बैल्कनी के कारण आपको इस 2 BHK में सिर्फ एक ही कॉमन बाथरूम दिया गया है, ठीक है। सो ये जो आपको बैल्कनी दी गई है, इस बैल्कनी का साइज़ मैं बता दूं, ये आपका 2.5 फुट बाई 8.5 फुट का, 2.5 फुट बाई 8.5 फुट का ये आपको बैल्कनी दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिया, अगर आप शाम को चाहे तो यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह, पकोड़े वगैरह एंजॉय कर सकते हैं और इस पॉन्ड व्यू के साथ, ठीक है। सो यहीं से आपको मेन रोड भी दिख जाएगा, मतलब ये जो पॉन्ड ख़त्म हो रहा है उसके उस साइड में जहाँ से साइकिलें वगैरह जा रही है वो आपका मेन रोड है, ठीक है। सो इसमें, इस फ्लैट में जो ग्राउंड फ्लोर का ये जो 2 BHK, इसमें ये आपको बैल्कनी दिया गया है विद सिंगल बाथरूम ऑन इट, ओके। सो ये जो आपको मास्टर बेडरूम दिया गया है, इसका साइज 10.5 बाई 9.5 का ये आपको मास्टर बेडरूम दिया गया है। बैल्कनी का जो डोर है उसी के ऑपोजिट, उसी के बाजू में जो वॉल है वहाँ पे आपको एक टीवी पॉइंट दिया है। आप चाहे तो यहाँ पे अपना टीवी रख सकते हैं। जैसे ही आप मास्टर बेडरूम से निकलेंगे आप अपने वापस हॉलवे कम लिविंग डाइनिंग स्पेस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बैठे या ना बैठे, हम लोग तो यहाँ पे बैठ गए पॉन्ड के पास इस खूबसूरत व्यू के साथ। सो चलिए अब मैं सौरभ भैया से पूछ लेती हूँ। सौरभ भैया, इसका सुपर बिल्ड एरिया क्या है? এটা সুপার বিল্ড এরিয়া হচ্ছে 675 স্কয়ার ফিট। এটা আমরা দাম একদম ফিক্স রেখেছি, কিছু করা যাচ্ছে না। এটা 20 লাখ ফিক্সড প্রাইস আছে। हाँ, सो जैसे आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि कोई 2 BHK विद बैल्कनी, और यहाँ पे आपको सिर्फ बैल्कनी नहीं, एक पॉजिटिव पॉइंट पॉन्ड व्यू भी दिया गया है। सो इट इज परफेक्ट फॉर यू, इट्स मैच विथ योर रिक्वायरमेंट्स। बस यहाँ पे एक ही ड्रॉबैक है, जैसे हमने बताया, यहाँ पे सिंगल एक ह्यूज सा बाथरूम दिया गया है। अदरवाइज इस फ्लैट में कोई ड्रॉबैक नहीं है। इसका जो प्राइस है वो 20 लाख रखा गया है, ठीक है। मेंटेनेंस जैसे भैया बता चुके हैं 200 से 300 मैक्सिमम होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो ठीक है। अगर आप लोग को ये फ्लैट अच्छा लगा, इसका लेआउट अच्छा लगा, तो अब मैं सौरभ भैया आप सौरभ भैया का नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पुल आउट करके इन्हें कांटेक्ट कर लीजिए और साइट विजिट के लिए आ जाइए, ओके। सो चलिए अब मैं आपको दूसरा लेआउट दिखा देती हूँ जो कि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का है, जिसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। सो चलिए अब वहाँ पे देखते हैं कि उसका लेआउट कैसा है। सो चलिए फ्रेंड, अभी मैं आपको फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का 2 BHK का लेआउट दिखा देती हूँ। इसका सुपर बिल्ड एरिया भी 667 है, यानी कि 667 स्क्वायर फीट सुपर बिल्ड एरिया है, ठीक है। इसका लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट है। सो जैसा कि आपने ग्राउंड फ्लोर पे देखा कि कॉमन एरियाज और स्टेयर्स में मार्बल का काम किया गया है, ठीक है। रूम पे घुसते ही इसकी जो फ्लोरिंग है वो आप देखेंगे कि जॉनसन का ये विट्रीफाइड टाइल्स यूज़ किया गया है, जैसे सौरभ भैया ने बताया है, ठीक है। सो मैं अभी जोर पे हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका डायरेक्शन बता दूँ इस फ्लैट का। सो वो नॉर्थ साइड है, जहाँ पे मैं खड़ी हूँ साउथ। सो यहीं से मैं आपको पूरे फ्लैट का लेआउट बता देती हूँ, फिर उसके बाद 1 बाय 1 मैं आपको उसका साइज़ बताऊँगी। सो हॉल कम लिविंग से अटैच ही आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। हॉलवे से अटैच आपको ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। कॉमन बाथरूम के बाजू में ही आपको एक मास्टर बेडरूम दिया गया है, जिस पे एक अटैच बाथरूम है, लेकिन कोई बैल्कनी नहीं है, और ये है आपका मेन एंट्रेंस। सो चलिए अभी मैं आपको 1 बाय 1 साइज बता देती हूँ। हॉल कम डाइनिंग जो स्पेस है, इसी से अटैच आपको एक ओपन किचन दिया गया है। सो इस हॉल कम डाइनिंग का जो स्पेस है वो 8.5 बाई 14 फुट है, ठीक है। सो ये 8.5 फुट बाई 14 फुट का ये आपको एक हॉल कम ओपन किचन का स्पेस दिया गया है। एक बड़ी सी स्लाइडिंग डोर दी गई है। किचन में ही आपको एक मीडियम साइज़ का विंडो दिया गया है। ऊपर में आपको चिमनी का पॉइंट दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वाइट ग्रेनाइट का स्लैब बैठाया गया है। सो बहुत खूबसूरत लग रहा है। सो ये बेसिकली इसकी जो किचन का जो स्लैब है, इसकी जो लंबाई है वो 8 फीट है, ठीक है, जिसमें एक आपको मीडियम साइज़ का सिंक पॉइंट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर का एक पॉइंट दिया गया है। अंदर में एक और आपको माइक्रोवेव ओवन वगैरह के लिए पॉइंट दिया गया है। ऊपर चिमनी के लिए पॉइंट दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे सिंक के लिए सिंक के लिए एक टैप पॉइंट दिया गया है। ऊपर आरओ का पॉइंट दिया गया है। सो बेसिकली ये जो आपका हॉल है 8.5 बाई 14 का ये आपको हॉल दिया गया है। फिर उसके बाद इसी से अटैच ये आपका फर्स्ट बेडरूम है,
ठीक है। ये जो फर्स्ट बेडरूम है इसका साइज़ 10x10 है। या इस कमरे में आपको 2 बड़े बड़े स्लाइडिंग विंडोज़ दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे दरवाजे के बाजू में ही आपको एक मेन स्विच पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे छोटा सा एक स्पेस दिख रहा है। सो अगर आप चाहे तो यहाँ पे ना वॉल माउंटेड कुछ वार्डरोब वगैरह बना सकते हैं इस स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है। सो ये 10x10 का आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। जैसे ही आप बेडरूम से निकलते हैं वापस अपने डाइनिंग कम हॉल में पहुंच जाते हैं। हॉल से ही अटैच आपको हॉलवे में एक ही कॉमन बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे एक आपको बेसिन पॉइंट लगेगा, इसीलिए एक पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे अभी तक लगा नहीं है, कुछ काम बाकी है जो विद इन 10 डेज हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिन के लिए एक पॉइंट दिया गया है और ये आपको ह्यूज सा कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो इस बाथरूम का जो साइज़ है 4x7 का आपको ये कॉमन बाथरूम दिया गया है, ह्यूज सा। सामने में एक विंडो दिया गया है, ऊपर में एग्जॉस्ट फैन के लिए पॉइंट दिया गया है। कॉर्नर में आपको गीजर पॉइंट दिया गया है। सेंटर में ही आपको शावर पॉइंट दिया गया है। उसके नीचे ही आपको ये टैप पॉइंट्स वगैरह दिया गया है, ठीक है। सो बेसिकली ये आपका 4x7 का ह्यूज सा कॉमन बाथरूम है, ठीक है। कॉमन बाथरूम से निकलते ही आपको साइड में ये आपका सेकंड मास्टर बेडरूम है, ठीक है। सो मैं यहीं से दिखा दूँ कि इस मास्टर बेडरूम में जो सबसे पहले आपको दिखेगा वो एक ह्यूज सा स्लाइडिंग विंडो जिससे कि आपको पॉन्ड व्यू मिल जाएगा। सो मुझे नहीं पता मेरा कैमरा आपको शो कर पा रहा है कि नहीं, बट आपको यहाँ से पॉन्ड का व्यू दिख जाएगा, आपको मेन रोड भी दिख जाएगा। सो यहाँ पे बेसिकली जैसे ग्राउंड फ्लोर में आपको एक बैल्कनी दी गई थी, यहाँ पे आपको बैल्कनी नहीं दिया गया है। यहाँ पे एक आपको स्पेस को एक्सटेंड करके, इस कमरे को एक्सटेंड करके एक स्लाइडिंग डोर दे दिया गया है। ऊपर में आपको ह्यूज लॉफ्ट का एरिया दिया गया है जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं और उसी के बाजू में ये आपको एक अटैच बाथरूम दिया गया है और ये दूसरा स्लाइडिंग विंडो दिया गया है। साइड में ही आपको एसी का पॉइंट दिया गया है। दरवाजे के जस्ट बाजू में आपको मेन स्विचेस का पॉइंट दिया गया है, ठीक है। सो ये 10.5x14 का ये आपको मास्टर बेडरूम दिया गया है जिससे अटैच एक ये आपको बाथरूम दिया गया है। सो बेसिकली इस बाथरूम का जो साइज़ है वो 3x4 का ये आपको छोटा सा अटैच बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको टॉयलेट शीट बैठेगा। पीछे में ही आपको एक विंडो दी गई है। यहाँ पे ही आपको टैप पॉइंट दिया गया है, बट यहाँ पे कोई शावर पॉइंट नहीं है। सो आपको एक सिंगल टैप पॉइंट दिया गया है। सो ये 3x4 का ये आपको एक अटैच बाथरूम दिया गया है और उसी के बाजू में ही आपको ये पॉन्ड व्यू के साथ एक स्पेस को बढ़ाया गया है। यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन पॉइंट दिया गया है जिसके बाजू में आपके स्विचेस वगैरह है। सो आप चाहे तो यहाँ पे अपना वॉशिंग मशीन रख सकते हैं या एक बेसिन बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। और ठीक है, और ये स्लाइडिंग विंडो दी गई है जहाँ से बहुत खूबसूरत सी हवा आ रही है। ट्रस्ट मी बहुत खूबसूरत सी हवा आ रही। देख रहे हैं कि अगर आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन है ना हवा चलने के कारण देखिए पेड़ के पत्ते वगैरह बहुत ज़ोर से हिल रहे हैं। सो यू कैन गेस कि हवा बहुत चल रही है क्योंकि ये कमरा साउथ साइड में है, साउथ फेसिंग में है। सो इसीलिए आपको हवा यहाँ से प्रॉपरली हमेशा मिलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद यहीं से आपको वो जो आपको गाड़ियाँ वगैरह जा रही है वहाँ वही आपका मेन रोड है, वह यहीं से आपको दिख जाएगा। सो ये वाले कमरे से आपको ये खूबसूरत सा ह्यूज पॉन्ड व्यू मिल जाएगा। पॉन्ड व्यू मिल जाएगा। सो इस 2 BHK में आपको 2 बाथरूम तो दिया गया है लेकिन किसी भी तरह का कोई बालकनी नहीं दिया है। सो अब ये आपके प्रेफरेंस में है कि आपको 2 बाथरूम चाहिए विदाउट बालकनी या फिर 1 बाथरूम विद बालकनी चाहिए। और इसी मास्टर बेडरूम में ये आपको टीवी के लिए पॉइंट दिया गया है इस वॉल पे। सो आप चाहे तो अपना टीवी यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर जैसे ही आप अपने मास्टर बेडरूम से निकलते हैं आप अपने हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस पे वापस आ जाते हैं और ये आपका मेन डोर है। यहाँ पे आपके मेन स्विचेस वगैरह रहेंगे
ऊपर में आपको एक ये MCV का पॉइंट दिया गया है। सो ये बेसिकली 667 का ये 2 BHK है, जिसमें आपको 2 बाथरूम दिया गया है जो कि 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर पे अवेलेबल है। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको बिल्डिंग दिखा दी, दोनों 2 BHK का लेआउट दिखा दिया, आसपास का खूबसूरत सा लेक पॉन्ड व्यू भी दिखा दिया। आज सौरभ भैया को बहुत ज़्यादा हड़बड़ी थी, आज संडे है, सो वो बहुत ज़्यादा बिजी थे, कंटिन्यूसली उनको क्लाइंट के कॉल आ रहे थे, तो इसलिए उनको जाना पड़ा। सो वो आप लोग को बाय नहीं कह पाए, ठीक है। सो इसीलिए एंडिंग रैप अप मैं ही कर रही हूँ। सो अगर आप लोगों को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, सो इसमें 3 ही फ्लैट्स अवेलेबल है, ठीक है। एक 20 और 21 लाख के रेंज में मैंने आपको दिखा दिया है। सो आपको जैसा पसंद है, आपको ग्राउंड फ्लोर लेना है, 1st फ्लोर या 2nd फ्लोर, इट्स अप टू यू। सो अगर आपको अच्छा लगता है तो सौरभ भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप पुल आउट करके उन्हें कॉल कर लीजिए, क्योंकि लिए 3 ही हैं, सो कभी भी सोल्ड आउट हो सकते हैं। अगर आप लोग के पास कोई प्रोजेक्ट है, कोई स्टैंड अलोन बिल्डिंग या कोई सोसाइटी या कॉम्प्लेक्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं आकर वहाँ पे शूट करूँ, सो मैं अपना ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर रीसेल प्रॉपर्टी है तो आप अपने फ्लैट का पिक्चर्स वगैरह आप मुझे शेयर कर सकते हैं। अगर मुझे सही लगा तो डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू एंड डेफिनेटली आई विल शूट इट, ओके। अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।